आसनसोल नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी की अध्यक्षता में आज निगम के सभागार में वोट ऑन अकाउंट बैठक हुई, जहां आसनसोल के मेयर, विधान उपाध्याय अभिजीत घटक, वसीमुल हक सहित विभिन्न दलों के पार्षद उपस्थित थे। आज की बैठक का भाजपा ने बहिष्कार किया। आज की बैठक में इस वित्तीय वर्ष के बाकी बचे 2 महीने के लिए वोट ऑन अकाउंट पेश किया गया और उसे सर्वसम्मति से पास किया गया। आज की बैठक में इस वोट ऑन अकाउंट को पास करवाया गया। पत्रकारों से बातचीत के क्रम में अमरनाथ चटर्जी ने कहा कि इस वित्तीय वर्ष के खत्म होने में अब सिर्फ 2 ही महीने बाकी रह गए हैं और आसनसोल लोकसभा के उपचुनाव के कारण आचार संहिता लागू है। ऐसे में पूर्ण बजट पेश नहीं किया जा सकता है। इसे देखते हुए अगले 2 महीने के आय व्यय के लिए वोट ऑन अकाउंट की बैठक बुलाई गई है। अमरनाथ चटर्जी ने कहा कि लोकसभा उपचुनाव बीत जाने के बाद मेयर एक पूर्ण बजट पेश करेंगे। आज की बैठक में भाजपा पार्षदों की अनुपस्थिति पर अमरनाथ चटर्जी ने कहा कि भाजपा आसनसोल का विकास नहीं चाहती, तभी बैठक का बहिष्कार किया। उन्होंने आगे कहा कि इस वित्तीय वर्ष के खत्म होने में अब सिर्फ 2 ही महीने बाकी हैं। ऐसे में अगर वोट ऑन अकाउंट पास नहीं किया जाता तो अगले महीने से कर्मचारियों का वेतन, बिजली के बिल आदि जरूरी खर्च कैसे किए जाएंगे। इस वजह से इस बैठक का आयोजन किया गया था। उन्होंने कहा कि भाजपा की नीतियां हमेशा जन विरोधी ही रही है। पश्चिमबंग म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन आईन 2006 69 নম্বর ধারা বলে প্রত্যেক মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের বাজেট মেয়র সাহেব দ্বারা বোর্ড অফ কাউন্সিলের সভায় 15 ফেব্রুয়ারির মধ্যে বা সর্বাধিক সময়সীমা অনুযায়ী 31 মার্চের মধ্যে উপস্থাপন করা আইনানুগ। আসানসোল পৌর নিগমের ক্ষেত্রে সদ্য নির্বাচিত বোর্ডের গঠনের অনতিকাল অতিবাহিত হওয়ার অনতিবিলম্বে আসানসোল লোকসভা কেন্দ্রের সংসদীয় উপনির্বাচন ঘোষিত হওয়ার পূর্ণরূপ বাজেট পেশ করা আইনানুগ সম্ভব নয়। এই মতো অবস্থায় পৌর নিগমের দৈনন্দিন আয় ব্যয় সংক্রান্ত কার্যকলাপ নির্বাহনের নিমিত্তে আগামী এপ্রিল ও মে 2022 এই 2 মাসের ভোট অন অ্যাকাউন্ট বাজেট বোর্ডের বিশেষ সাধারণ সভায় অনুমোদনের জন্য পেশ করা হলো। প্রসঙ্গত এমসিসির সময়সীমা অতিবাহিত হওয়ার পর নবনির্বাচিত বোর্ড 2022-2023 সালের পূর্ণাঙ্গ এবং 2021-2022 সালের সংশোধিত বাজেট অনুমোদনের জন্য পেশ করবে। মোট চলতি আয় আমাদের 2041.512 লাখ, আর এটা চলতি আয়। আর ব্যয়টা হচ্ছে 2022.849 লাখ। আজকে আমরা একটা জরুরি সভা ডেকেছিলাম, কারণ আর 2 দিন পরে বছরটা শেষ হয়ে যাবে। বছরটা শেষ হলে আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনে সমস্ত অ্যাকাউন্ট ক্লোজ হয়ে যেত এবং যার জন্য কর্পোরেশনটাকে চালানো আমাদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে যেত, এবং যেটাতে আমরা দেখলাম যে একটা জরুরি সভা করার প্রয়োজন আছে। আর চেয়ারম্যান হিসাবে আমার একটা জরুরি সভা ডাকার সবসময় এখতিয়ারের মধ্যেই পড়ে, যে কোনো সমস্যার মধ্যে পড়লে। কারণ এই রকম এখন যেটা ইলেকশন আচারবিধির মধ্যে রয়েছে, সেখানে বিভিন্ন লোক বিভিন্ন রকমভাবে ব্যস্ততা আছে, কিন্তু আমরা তো মানুষের কথা ভাবি, আমরা তো মানুষের জন্য আমাদের সেটা চিন্তাভাবনা করতে হয়। 20 কোটি 41 লক্ষ টাকা আমরা আমাদের যে রোজগারটা হবে এই 2 মাসে, সেইটার তার মধ্যে আমরা 2 কোটি 22 লক্ষ টাকা আমরা খরচা করব, 22 লক্ষ আর 849 টাকা, এবং তার মধ্যে আমাদের 18 লক্ষ 663 টাকা আমাদের উদ্বৃত্ত থাকবে। তো তারপরে আমাদের পূর্ণাঙ্গ বাজেট আমরা সবাই মিলে বসে আমাদের মেয়র সাহেব সেটা পেশ করবেন। আমাদের সেই বাজেট অনুযায়ী আমাদের কত টাকা ধার্য পাবো, আমরা কোথা থেকে কত টাকা পাবো, স্টেট গভর্নমেন্ট কত টাকা দেবে, সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট কত টাকা দেবে, আমরা বিভিন্ন কমিশনের মধ্যেখান থেকে কত টাকা পাবো, কোন ফিন্যান্স কমিশনে কত টাকা আসবে, আমরা সেই সমস্তগুলো ধার্য করে আমরা করব, আমাদের পূর্ণাঙ্গ বাজেট তৈরি করব। স্যার, আজকে দেখা গেল যে বিজেপির কোনো কাউন্সিলর ছিলেন না এখানে,
না সে ব্যাপার তো ধরুন ওদের মনের কথা তো আমি বলতে পারবো না। তো বিজেপি তো চায় না পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়ন হোক, তো বিজেপি বারবার না থাকারই প্রয়াস করে এবং ভারতবর্ষের আজকে অর্থনীতিটা খুব তলানিতে চলে গেছে। এই সমস্ত দেখতে দেখতে বিজেপি আজকে ভারতবর্ষটাকে কোন জায়গায় ঠেলে দিয়েছে। গত 3 দিনে 1100 কোটি ডলার ভারতবর্ষের বৈদেশিক মুদ্রার ঘাটতি হয়ে গেছে মোদির এই ভ্রান্ত নীতির জন্য। তো সেই জন্য তারা কি বলল, তারা ওইসব নিয়ে আমরা ওই সমস্ত ভাবি না। আমরা মানুষের প্রতিনিধি, আমরা মানুষের কথা ভাবার জন্য এসেছি। আমাদের আসানসোল শহরে জন্ম, আমাদের আসানসোল শহরের কথা ভাবছি আমরা। बीरभूम जिला तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष और आसनसोल लोकसभा उपचुनाव के टीएमसी प्रभारी अनुव्रत मंडल आज आसनसोल पहुंचे। रविंद्र भवन में उन्होंने टीएमसी प्रत्याशी शत्रुघ्न सिन्हा के समर्थन में एक कर्मी सभा की। इस मौके पर पश्चिम बर्धमान जिला तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष विधान उपाध्याय वी शिवदासन दासू, पांडवेश्वर के विधायक नरेंद्रनाथ चक्रवर्ती सहित आसनसोल नगर निगम के तमाम टीएमसी पार्षद, नेता, कार्यकर्ता, समर्थक उपस्थित थे। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत के क्रम में अनुव्रत मंडल ने कहा कि आने वाले लोकसभा उपचुनाव में यहां से टीएमसी को 2 लाख से ज़्यादा मतों से जीत हासिल होगी। কর্মী সম্মেলন কি হলো? কর্মী সম্মেলন খুব ভালো সম্মেলন হলো। এখানে মিনিমাম 2 লক্ষ থেকে 2.5 লক্ষ ভোটে বিজেপি থেকে হারানো। বিজেপি প্রার্থী অগ্নিমিত্রা পাল বলছে যাতে আপনি এখানে প্রচার করতে না পারেন, উনি দাবি জানিয়েছেন। আসানসোলটাকে গোটাটাই কিনে নিয়েছে নাকি আমার জানা নাই তো। আসানসোল কি গোটাটাই কিনে নিয়েছে? রাস্তাঘাট, বাড়ি ফাড়ি সব? তো ওটা কি প্রশ্ন করছি আপনি যে তিনি কবে খরিদ করে দেন, কবে দলিল করে দেন? বুঝতে পারলেন দাদা? ওরা বলছে যে 2.5 লক্ষ ভোটে, আপনি যেটা বলছেন 2.5 লক্ষ ভোটেই তৃণমূল হারবে। এবারে মমতা ব্যানার্জির উন্নয়নের জন্য আমরা অটোমেটিক জিতে গেছি। নরেন চক্রবর্তীকে নিয়ে আজকে তৃণমূল বিজেপি বক্তব্যে তারা একটা ভিডিও প্রকাশ করেছে এবং তার প্রেক্ষিতে রামপুরহাটের ছায়া দেখছেন ওরা, আপনি কি বলবেন? দেখুন এগুলো তো আপনার বাড়াবাড়ি। কোন সাংবাদিক? আনন্দবাজার পত্রিকা। এটা আপনার বাড়াবাড়ি। নরেন কি বললো, নটা ড্যামি করা হলো, আপনি বসছিলেন নাকি কাছে? আপনি সাংবাদিক কাছে বসছিলেন? কাছে বসছিলেন? নরেন বললো না, কে ড্যামি করলো? আনন্দবাজার থেকে ধরে কথা প্রশ্ন করেন দাদা। পেপারটা একটা নাম আছে, খুব পুরনো পেপার। না এটা তো বিজেপির অভিযোগ, সেই ব্যাপারে আপনার কি? না আপনি যেভাবে কথাটা থ্রো করলেন যে আপনার অভিযোগ। দাদা কিসের উপরে ভিত্তি করে বলছেন 2.5 লক্ষতে জিতবো? দেখুন আমরা জানি 2 বার লোকসভায় জিতেছে। আপনারা এবারে দেখুন, আপনাদের কাছে চ্যালেঞ্জ করলাম, এবারে মমতা ব্যানার্জি উন্নয়নের জন্য ভোট দেবেন। আপনারা সাংবাদিক তো, আর যদি এবারে শত্রুঘ্ন সিনহা না যেতে না, আসানসোলটা থাকবে না, আসানসোলটা থাকবে না। আপনারা আমার সামনে বলতে পারছেন না, বাইরে গিয়ে বলবেন শত্রুঘ্ন সিনহাকে জেতাও, নাহলে আসানসোল থাকবে না। কেউ আপনার ভাই চাকরি করে, কেউ আপনার দাদা চাকরি করে, কেউ আপনার পিস্তত ভাই চাকরি করে, এই জন্যই আপনারা বলবেন। ঠিক আছে, ধন্যবাদ। 100 বার খেলা। তুমি ছিলে নাকি সিবিআই কাছে? তুমি সিবিআই কাছে বসছিলে যে আমাকে অ্যারেস্টের অর্ডার দিয়েছে? হ্যাঁ, কোন চ্যানেল? आने वाले लोकसभा उपचुनाव में वामपंथ के मनोनीत माकपा प्रत्याशी पार्थो मुखर्जी ने रानीगंज के मारवाड़ी अस्पताल के निकट से एक चुनावी रैली निकाली। 93 नंबर वार्ड के हल्दर बांध, अशोकपल्ली, कीर्तन या पाड़ा सहित तमाम इलाकों में गए और आने वाले चुनाव में लोगों से वामफ्रंट के पक्ष में मतदान करने की अपील की। इस मौके पर उनके साथ रानीगंज के पूर्व विधायक रूनू दत्ता, हेमंत प्रभाकर, मनोजीत बोस, दिव्येंदु मुखर्जी, कृष्णा दास गुप्ता,
सुप्रिया राय आदि उपस्थित थे। रैली के दौरान प्रथम मुखर्जी ने लोगों से जनसंपर्क साधा और आने वाले लोकसभा उपचुनाव के दिन यानी 12 अप्रैल को वामफ्रंट के पक्ष में मतदान करने की अपील की, ताकि औद्योगिक शहर आसनसोल की पुरानी गरिमा को फिर से लौटाया जा सके। আসানসোল শিল্পাঞ্চলে নতুন শিল্প গড়ার দাবিতে শ্রমিক নেতা কমরেড পার্থ মুখার্জিকে কাছে হাতুড়ি। आसनसोल नगर निगम के 28 नंबर वार्ड के कांग्रेस पार्षद गुलाम सरवर ने मेयर विधान उपाध्याय को एक चिट्ठी लिखी है। इस पत्र के जरिए उन्होंने पिछले साल 30 सितंबर को आसनसोल में आए चक्रवाती तूफान गुलाब से हुई तबाही के संदर्भ में कुछ बातें की, इसकी तरफ मेयर का ध्यान आकर्षित किया है। गुलाम सरवर ने कहा कि चक्रवाती तूफान गुलाब के कारण उनके वार्ड सहित रेलपार के विभिन्न इलाकों में भारी तबाही हुई थी। इसके उपरांत राज्य सरकार के मंत्री साधन पांडे यहां जायजा लेने आए थे और एडीडीए भवन में पीड़ित परिवारों के साथ एक बैठक कर जल्द से जल्द मुआवजा देने की बात कही थी। गुलाम सरवर ने कहा कि 6 महीने बीत जाने के बाद भी अब तक किसी भी व्यक्ति को कोई मुआवजा नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द मुसलमानों का पवित्र महीना रमज़ान शुरू हो जाएगा। उन्होंने इस पत्र के जरिए मेयर विधान उपाध्याय से गुहार लगाई कि क्योंकि कई बाढ़ पीड़ितों की आर्थिक हालात काफ़ी ख़राब है, ऐसे में रमज़ान का महीना शुरू होने से पहले इनको अगर मुआवजे की रकम मिल जाए तो इनके लिए काफ़ी सहूलत हो जाएगी। दिया कि 30 सितंबर को एक साइक्लोन आया जिसमें हम लोगों के इलाके में सैलाब के वजह कर करीब इलाका मैंने नदी के किनारे का हिस्सा डूब गया और लोगों के पास खाने से लेके कपड़े से लेके किसी भी तरह का मैंने चीज़ और नहीं बचा। ऐसे हालात में एडीडीए के गेस्ट हाउस में हमारे जावेद खान साहब ऑनरेबल मिनिस्टर आए, मीटिंग किए। उन्होंने कहा कि मैंने लोगों को कुछ रिलीफ दिया जाएगा। लोग फॉर्म फिलअप किए, डीएम ऑफिस के लोग आए, कॉरपोरेशन के लोग आए, इंक्वायरी हुआ, तमाम तर चीज़ करने के बाद भी आज 6 महीना का अरसा गुजर गया, लेकिन अब तक कोई भी किसी भी बंदे को 2 पैसे का कोई मदद नहीं मिला। तो हम लोग चाहते हैं कि कम से कम या तो आप डिक्लेयर कर दीजिए कि भाई हम इस पोजीशन में नहीं है, गवर्नमेंट इस पोजीशन में नहीं है कि आपको कोई मदद दे सकती है, या अगर देने का कोई गुंजाइश है तो कम से कम 10 दिन कबल हम लोगों का रमज़ान आ रहा है। तो जो बहुत फाइनेंशियल कमज़ोर लोग हैं, इस गिरानी में जो जूझ रहे हैं, ऐसे हालत में अगर कोई मदद मिल जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, सैलाब में जो तबाह हुए, बर्बाद हुए, तो उन लोगों के लिए थोड़ा राहत का काम होगा। मेरे इलाके में पानी का सिलसिला, पानी के वजह से लोग बहुत परेशान हैं। पानी का प्रेशर कम से कम कई महीनों से मैंने लोग, ऐसा हालत है कि लोगों को 250 रुपये में पानी खरीद के घर में लेना पड़ रहा है। कई लेटर हमने कॉरपोरेशन दिया, आज भी मेयर साहब को कहा, आज भी रिटेन दिया उनको। उन्होंने यकीन दिलाया है कि मैं देख रहा हूँ, इसको जल्द से जल्द देखूंगा। देखा जी, पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस सहित रोजमर्रा की चीजों की कीमतों में दिन ब दिन हो रहे बढ़ोतरी के खिलाफ आज रानीगंज के नेताजी मोड़ के पास तृणमूल युवा कांग्रेस की तरफ से शिव भट्टाचार्य के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर यहां वापी चक्रवर्ती सहित तमाम युवा कांग्रेस के कई कार्यकर्ता और समर्थक उपस्थित थे। इस मौके पर शिव भट्टाचार्य ने कहा कि केंद्र सरकार की नीतियों के कारण जिस तरह से पेट्रोल, डीजल, रोजमर्रा की चीजों की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है, उसके खिलाफ ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के निर्देश पर आज हर ब्लॉक स्तर पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस हमेशा लोगों के साथ खड़ी रहती है और जब भी इस तरह से लोगों को कोई विपदा आती है, तृणमूल कांग्रेस उसका पुरजोर विरोध करते हुए सड़कों पर उतरने से भी गुरेज नहीं करती। গত 8 দিনে আমাদের পুরো ভারতবর্ষে পুরো ইয়েতে আমাদের পেট্রোল ডিজেলের দাম লাগাম ছাড়া বেড়ে উঠেছে। সাধারণ মানুষের নিত্যতে প্রতিদিন মানুষের খুবই অসুবিধা হচ্ছে। এই কথা চিন্তিত রেখে আমাদের নেত্রী, আমাদের সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে
প্রতিটা ব্লকে প্রতিটা অঞ্চলে পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল ছাত্র পরিষদ তৃণমূল যুব কংগ্রেসের পক্ষ থেকে প্রতিটা ব্লকে প্রতিটা স্তরে বিক্ষোভ সমাবেশে প্রতিটা সমাবেশে করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, সেটাই আজ আমরা পালন করলাম। মেসেজ এটাই দিতে চাইছিলেন যে আমাদের প্রতিটা মানুষের সাথে আমাদের তৃণমূল কংগ্রেস সরকার প্রতিদিন প্রতিটা সময় আমাদের মানুষের সঙ্গে সবসময় থাকে। যখন যেখানে দাম বাড়ে সেখানে প্রতিবাদ আমরা করি। তাই প্রতিটা সময় পেট্রোল হোক, ডিজেল হোক, গ্যাস হোক, রান্না যাবতীয় যা জিনিসপত্র হোক, আমাদের সবাই আন্দোলনে নেমে থাকি। আমরা প্রতিবাদ সবসময় থাকি। এখানে তৃণমূল সরকার সবসময় মানুষের সঙ্গে ছিল, মানুষের সঙ্গে আছে, মানুষের সঙ্গে থাকবে। शिव भट्टाचार्य, रानीगंज ब्लॉक तृणमूल युवा कांग्रेस सभापति। आज शिल्पांचल के व्यवसायियों ने मेयर विधान उपाध्याय से मुलाकात की और उनके साथ एक बैठक की। इस संदर्भ में मेयर विधान उपाध्याय ने कहा कि आज व्यवसायियों के साथ एक नियमित बैठक की गई है, जिसमें व्यवसायी ने अपनी कुछ समस्याओं के बारे में नगर निगम को अवगत कराया। इनमें जमुड़िया बड़रपुर के व्यवसायियों की सबसे बड़ी समस्या थी सड़क की समस्या। उन्होंने कहा कि जल्द ही इन समस्याओं को दूर कर लिया जाएगा। আপনাদের আজকে মেয়র সাহেব যে ইন্ট্রোডাক্টরি মিটিং বলা হলো আমাদের এনক্রোচমেন্ট থেকে স্টার্ট করে যারা যারা যেখানকার বাসিন্দা নিয়ামতপুর থেকে শুরু করে ধাতকা, জামুড়িয়া, রানীগঞ্জ সব জায়গারই লোকেরা এসেছিলো। তারা নিজেদের সমস্যা বলল, এনক্রোচমেন্টের সমস্যা হোক, তাদের ব্যবসায়িক সমস্যা। তো উনি আশ্বাস দিয়েছেন আমাদেরকে যে উনি এটা শুধু শুনে ছাড়লেন না, বললো আমি যখন কথা দিয়েছি আমি এটা দেখবো। এই কথা আমাদের খুব ভালো লাগলো মেয়র সাহেবের, খুব পজিটিভ। এটাই আমরা চাই আমাদের মানে বাসিন্দা ব্যবসায়িক হিসেবে। আপনার নাম পরিচয়? शंकर चैटर्जी। विधानदा ऐसे तो विधानदा को सब कोई पहले से जानते हैं, और विधानदा भी हम लोग आज चैम्बर वाले थे, कुछ इंडस्ट्री वाले थे, सबको 95% लोगों को जानते हैं। फिर भी एक आज परिचय सम्मेलन हुआ, तो विधानदा भी नया नहीं है और उनका जो बात है अच्छा लगा। जो तो आसनसोल नगर निगम में भी आए, लेकिन बाराबनी में वो जो इंडस्ट्री का मदद किए हैं और जो भी वहाँ पर उनके एरिया में इंडस्ट्री लगाया है वो बहुत खुश है। तो हमारे मेंबर लोग भी उनका तारीफ़ कर रहे थे और उनका जो अप्रोच है वो बहुत पॉजिटिव अप्रोच है, उससे व्यापारी वर्ग काफ़ी खुश है। आपका नाम परिचय? जगदीश बागड़ी, सेक्रेटरी, साउथ बेंगल फेडरेशन ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। উনিও একটা সৌজন্যতা সবার সঙ্গে যে সৌজন্য বিনিময় করলেন, এবং তার সাথে উনি যেটা বললেন যে আমরা এবারে প্রত্যেক মাসে আমরা বসবো একবার করে, আপনাদের সমস্যাগুলো আমরা শুনবো, আমাদের যেটা সমস্যা সেটা আপনাদের বলবো, কারণ আপনাদের সাথেই আমরা চলে পড়ে এতদিন চলেছি, আগামী দিনেও চলবো। এবং খুবই ভালো মানে ওনার যেটা আছে, ওনাকে দেখুন মানে সবাই তো হচ্ছে লোকাল আর কি, যে চেয়ারম্যান, মেয়র, ডেপুটি মেয়র সবাইকেই তো ব্যক্তিগতভাবে ধরুন আসানসোলে সবাই চেনে, ছোটো শহর আসানসোল, কিন্তু তবুও ধরুন এইসব পোস্টে একদম ঠিক লোকজন বসেছেন এবং এটা আসানসোলের জন্য খুব ভালো হবে। আর ওনার যে পজিটিভ অ্যাটিটিউড এটা কিন্তু খুব ভালো লাগলো। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। নাম পরিচয়? সৌমেন চ্যাটার্জি, প্রেসিডেন্ট আসানসোল মার্চেন্টস চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি। কী কথা না, আমরা প্রথম আমাদের যেহেতু 1 মাস হলো, তো 1 মাসে আমরা এর আগে বসেছিলাম, ওনাদের বলেছিলাম যে আমরা প্রত্যেক মাসে বসার চেষ্টা বসবো। তো সেহেতু আমরা এটা মিটিংটা ডেকেছিলাম, সমস্ত ব্যবসাদাররা এসেছিলেন, সকল সাথে একটু কার কী অসুবিধা আছে, কার কী কোথায় কী দরকার আছে, বা আমাদের কর্পোরেশনের সঙ্গে মানে সবসময় একটু ই করে চলা, এগুলো নিয়ে কথা হয়েছে, আর কিছু না। ওতে কি ডিমান্ড ছিল? ডিমান্ড কি বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রকম আছে, যেমন একটা কি আমাদের বানপুর সাইডে যে ইন্ডাস্ট্রি আছে যেগুলো, ওখানে রাস্তার প্রবলেম আছে। জামুড়িয়া সাইডে রাস্তার প্রবলেম আছে, মানে যেটা আমাদের রানীশাহের মোড় থেকে যেটা জামুড়িয়া যাচ্ছে সিঙ্গেল রাস্তা আছে, ওই রাস্তার প্রবলেম আছে। কিছু জায়গায় ইন্ডাস্ট্রিতে জলের প্রবলেম আছে, এগুলো বলছিলাম।
आज आसनसोल स्टेशन रोड पर 13 नंबर मोड़ के निकट बाबा बासुकीनाथ सेवा समिति परिसर में रोज की तरह सैकड़ों जरूरतमंदों को भोजन कराया गया। इसके साथ ही दिव्यांग को व्हील चेयर भी प्रदान किया गया। इस मौके पर बाबा बासुकीनाथ सेवा समिति के कर्णधार सर्जन जालूका ने कहा कि उनकी संस्था पिछले कई वर्षों से रोजाना जरूरतमंदों को दोपहर का भोजन करा रही है। इसी क्रम में आज भी ये कार्यक्रम किया गया था। साथ ही आज दिव्यांग को व्हील चेयर भी प्रदान किया गया है। जो सेवा कर रहे हैं ये कर रहे हैं, मेन सेवा ये कर रहे हैं। हम लोग इतने बिजी लाइफ में हम लोग नहीं निकल पा रहे हैं, लेकिन जो ये कर रहे हैं आज उसके आगे हम लोग कुछ भी नहीं है। मेन सेवा इनका है। आज बस यहाँ पे क्या हुआ जो ये सब बताएंगे यही है। हम लोग तो बस आके खड़े हो गए हैं, बस जो जिम्मेदारी ये निभा रहे हैं। आज एक विकलांग को व्हील चेयर दिया गया है और गरीबों को पूड़ी सब्जी बूंदिया केला लस्सी सब दिया गया है। और भी यहाँ पे हर तरह का प्रोग्राम होते रहता है, वो आप लोग के नज़र में है। बाबा बासुकीनाथ सेवा समिति विगत 6 वर्षों से निरंतर दोपहर में 11 से 1 बजे तक रोज़ दोपहर 200-250 को भोजन कराता। हम तो बोले 500 आदमी आइए, 500 को खिलाएंगे। भूखमरी है कहाँ? आज जो ये व्हील चेयर दिया गया है, हाँ, खाना खिलाया गया, ये किनकी तरफ से दिया गया? ये सवेता जिनक के तरफ से दिया गया। श्वेता जी राजगढ़िया के द्वारा दिया गया है। और कोई भी भगत यहाँ कुछ भी कर सकता है। और हम तो हर भगत से प्रार्थना करते हैं, साल में एक बार सेवा का मौका दे के देखिए। आप जितना पैसा देते उससे ज़्यादा गरीबों को मिलता कि नहीं मिलता? नहीं मिलता तो हमको सजा दीजिए, और मिलता तो आशीर्वाद दीजिए, बस और कोई कामना नहीं है हमारा। कल बंगाल विधानसभा में भाजपा और टीएमसी विधायकों के बीच धक्का मुक्की हुई थी। भाजपा का आरोप है कि इस धक्का मुक्की में उनके कई विधायक घायल हुए। आज इसके खिलाफ रानीगंज भाजपा की तरफ से रानीगंज थाने के सामने विरोध प्रदर्शन किया गया और एक ज्ञापन सौंपा गया। रानीगंज भाजपा नेता राजेश मंडल के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया गया और ज्ञापन सौंपा गया। इस मौके पर राजेश मंडल के अलावा सुनीता कायल, शमशेर सेन, गोपाल पारीक सहित तमाम भाजपा कार्यकर्ता समर्थक उपस्थित थे। इस मौके पर राजेश मंडल ने कहा कि जिस तरह से कल विधानसभा में लोकतंत्र की हत्या हुई है वह शर्मनाक है और इसके खिलाफ आज राज्य भर में थानों में ज्ञापन सौंपा जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस तरह की शर्मनाक हरकतों को रोकना जरूरी है और अगर ऐसा नहीं किया जाता तो संविधान में ही इसको रोकने के प्रावधान दिए गए हैं। देखिए, कल पूरा देश इस विषय को देखा कि कल बीते सोमवार को पश्चिम बंगाल विधानसभा असेंबली में जिस प्रकार लोकतंत्र की हत्या हुई, ये कतई बर्दाश्त के लायक नहीं है। इस तरह से लोकतंत्र के मंदिर में लोकतंत्र की हत्या, क्या जनता इसे बर्दाश्त करेगी? आज हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जनता की आवाज़ बन के आए हैं और उनकी आवाज़ को ही उठा रहे हैं कि इस तरह बंगाल में लोकतंत्र की हत्या बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कारण कि बाबा भीमराव अंबेडकर जी के संविधान की धज्जियाँ उनके लोकतंत्र के मंदिर में जिस तरह से उड़ाई जा रही है, तो शासक दल ये ध्यान में रखे कि संविधान में और कई संविधान के पन्ने हैं और उस पन्ने का इस्तेमाल करके इस राज्य की जो लोकतंत्र हत्याकारी जो सरकार चल रहा है उसको बर्खास्त भी किया जा सकता है। मेन दाबी है कि विधानसभा में जिस तरह से भारतीय और इसी घटना के प्रतिवाद में भारतीय जनता पार्टी के पूरे पश्चिम बंगाल में हम लोग प्रत्येक थाने में डेपुटेशन देके इस घटना का प्रतिवाद कर रहे हैं। इस तरह की घटना भविष्य में ना हो, और हो तो फिर संविधान और सरकार, केंद्र सरकार कोई भी हस्तक्षेप करे, इसके लिए हम लोग आज थाने में डेपुटेशन देने आए हैं। राजेश कुमार मंडल, भारतीय जनता पार्टी सभापति।